Breaking news that's come in: Rahul Gandhi is roasting his own party viewers. Rahul has brought back the horse analogy, saying race horse and Langda horse analogy is what he's talking about, and saying that you should be able to differentiate between race horse, Langda horse. That Rahul Gandhi is the leader of opposition in the country. First, insulting the Prime Minister of the country, the leader of the country that is leading the entire nation in making sure that we give a befitting response to Pakistan-sponsored terrorism. Meanwhile, he's roasted his own party, saying racehorse and Langda horse analogy, and he gave the example of these horses to differentiate between workers and leaders who are slogging for the party and those who are not and need to retire. But clearly he is, roasting his own party in this entire statement in the process of giving this remark. Listen into what he said. अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। All right, my colleagues Govind and Pragya are with me on the broadcast. Govind, to you first. Rahul Gandhi could have said it in a better way if he just wanted to say that he wants to revamp the party. Why roast your own party in front of the entire world? Yes. Yeah, absolutely. Yesterday, Rahul Gandhi came to Bhopal, in fact, for addressing, the organization of the Congress party. All the district president and MLAs and other brass leadership of Congress party of Madhya Pradesh was there in that program, in which he clearly says that Congress party is having three kind of horses. In fact, जो कमलनाथ को उन्होंने कोट करते हुए बोला कि बारात के घोड़ों को रेस में भेज दिया जाता है और रेस के घोड़ों को बारात में, और अब तीसरे प्रकार के घोड़े की भी बात की है कि लंगड़े घोड़े भी जो हैं उनको घर पर बिठा दिया जाएगा. दिस इज व्हाट राहुल गांधी वाज इन फैक्ट ensuring for making or providing the strength to the Congress party in Madhya Pradesh, in fact, and he was clearly comparing the in fact horses like रेस का घोड़ा कौन सा है और बारात का घोड़ा कौन सा है और लंगड़ा घोड़ा कौन सा है, and all the Congress leaders, in fact, including Digvijay Singh, Kamalnath, were also there. So what all in fact Rahul Gandhi was having intention towards, in fact, to say lame in fact horse. So this is what we can understand, which is somewhat derogatory for those leaders who have in fact devoted their whole life, in fact, to the Congress party, and they are getting the terminology of lame horse, in fact. तो इस तरह की बातें जब सामने आई हैं तो बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं का अपमान कर रहे हैं इस तरह से बोलकर. Govind and Pragya, stay with me. Let's also get our viewers once again what Rahul Gandhi has said about his own party members, comparing them with different kinds of horses. अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं और आप में से ऐसे लोग होंगे जो
पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। All right, I've got RP Singh of the BJP with me on the phone line. Mr. Singh, good morning. Your first reaction to what Rahul Gandhi has said about his own party members of the Congress. You allow me to answer this in Hindi because his speech was in Hindi and he was using a colloquial proverb for that. I mean, Langda Ghoda to sabko pata kaun hai? Jo 99 elections he lost in row. So, kaun hai Langda Ghoda sabko pata hai. I mean, a man, leader who can't provide leadership to the Congress party, who can't keep his flock together. तो सबको पता लंगड़ा घोड़ा कौन है। अब वो he can say whatever he want to say vis-a-vis his party men, that लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा. But the basic thing is that under his leadership, Congress has miserably failed, and he is trying to put onus on others now. He is not able to provide leadership, so he is trying to put other in the target. So he's trying to categorize the leaders by saying that they're Langda Ghoda. Okay. All right, Mr. RP Singh, thanks very much for joining us this morning on Times Now. Of course, viewers, this is the latest that has come in from the Congress party. Rahul Gandhi calling and comparing his own party members with different kinds of horses. The BJP, of course, saying he is shoving off the blame off his shoulders for the failures of the Congress party and putting the blame on his own party members. Now, with the BJP taking a jibe at Rahul Gandhi for his remarks, remember the Congress party has backed the leader of opposition, asking what's wrong in his statement. सर, इसके अलावा राहुल गांधी का एक कल बड़ा बयान सामने आया। अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर उन्होंने तंज कसा है, कहा है कि एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है जो परफॉर्म नहीं करता है। क्या संदेश वो इससे देना चाह रहे हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने के लिए, उनमें हौसला देने के लिए तमाम चीजें तो हैं, और जब कभी आप जंग में जाते हैं तो घोड़े तो अच्छे ही लेके जाने पड़ेंगे ना। अच्छे घोड़े ही दौड़ पाएंगे, रेस के घोड़े ही चलेंगे रेस के अंदर। विश्वास सारंग of the BJP joins me on the phone line. Mr. सारंग, क्या आपका रिएक्शन है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पार्टी के मेंबर्स डिफरेंट टाइप्स के घोड़े हैं। कांग्रेस डिफेंड कर रही है उस स्टेटमेंट को, कह रही है घोड़ों को तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर पार्टी को सक्सेसफुल करना है। अब देखिए, ये उनकी गुलामी वाली मानसिकता का परिचायक है। राहुल गांधी जी अभी तक मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम यही है। और यदि वो अपने कार्यकर्ताओं को जानवर बता रहे हैं तो ये नेहरू परिवार की मानसिकता का परिचायक है। नेहरू परिवार ने हर समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझा है, जानवर समझा है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता किस अभी भी गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं और ऐसी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनको जानवर कहता है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पर क्योंकि वैसे तो ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, हमें इस पर बहुत नहीं बोलना, पर मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके बाद भी कांग्रेस में क्यों है। कौन घोड़ा है?
इस तरह की बातें करना, ऐसी शब्दावली का लोकतंत्र में या किसी पार्टी में कहीं कोई स्थान नहीं है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसी गुलामी की मानसिकता के साथ ऐसे गुलाम बनकर और बंधुआ मजदूर बनकर यदि किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये कार्यकर्ता भी यदि ऐसा सुन रहे हैं तो ये उनकी भी गलती है। कार्यकर्ता को जानवर कहना ये कार्यकर्ता का भी अपमान है और पार्टी का भी अपमान है। विश्वास सारंग जी, जरूर राहुल गांधी इस चीज को एक बेहतर तरीके से कह सकते थे अगर वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को अब रिवैम्प किया जाएगा, पर क्या आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी में अगर ये रिवैम्प होता है? देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए सबसे पहले उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, उसकी नीति होनी चाहिए। देयर शुड बी सम पॉलिसी। कांग्रेस के पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई लीडर है। अब राहुल गांधी जैसे लीडर बनके यदि आप आगे पार्टी को चलाना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी का क्या होगा। जिस व्यक्ति को इस देश की एबीसीडी नहीं मालूम, जो व्यक्ति अपनी दादी की फोटो पर पुष्पांजलि करते हुए जूते नहीं उतार सकते, जो अपनी दादी की फोटो पर पुष्पांजलि फूल फेंक कर करते हैं, जूते पहनकर करते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? इस देश की संस्कृति, इस देश की पुरानी विरासत को वो समझते नहीं है, वो देश को नहीं समझते। उनको समझना चाहिए कि वो राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वो जबरदस्ती अपना भी समय खराब कर रहे हैं और कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। जी, विश्वास सारंग जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स, मध्य प्रदेश कोऑपरेशन स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर बीजेपी's विश्वास सारंग hitting out at Rahul Gandhi for the kind of remarks that he has made. Of course, we'll keep getting you the